سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ پانی آیا اور چلا گیا لیکن پیچھے کئی داستانیں چھوڑ گیا۔ دریائے چناب میں آنے والی طغیانی کے باعث ضلع جنگ کے 225 دیہات تباہی کا منظر پیش کرنے لگے۔ متاثرہ علاقوں کے رہائشی افراد مشکلات کا شکار، کھانے کو اجناس ختم ہو گئی۔ 14,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت فصلیں تباہ ہوئی۔ چارہ تباہ ہونے کے باعث جانور بھوکے مرنے لگے۔ تریمو ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، پانی کی آمد 1,55,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ پانی کا اخراج 1,48,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ سیلابی صورتحال سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ دریائے چناب میں آنے والی طغیانی کے باعث ضلع جنگ کے 225 دیہات تباہی کا منظر پیش کرنے لگے۔ متاثرہ علاقوں کے رہائشی افراد مشکلات کا شکار، کھانے کو اجناس ختم ہو گیا۔ 14,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت فصلیں تباہ، چارہ تباہ ہونے کے باعث جانور بھوکے مرنے لگے۔ اسی پر بات کریں گے مبشر سنکوی سے۔ جی مبشر، تازہ ترین صورتحال سے متعلق اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، تریمو ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 1,55,000 کیوسک جو پانی ہے اس کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب بلا شبہ پانی کی سطح میں کمی ہو رہی ہے، لیکن ضلع جنگ کے 225 دیہات ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک سیلابی پانی موجود ہے۔ پانی بلا شبہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، لیکن ان بے رحم موجوں کی جو تباہی کے اثرات ہیں وہ ان تمام تر دیہاتوں میں موجود ہیں۔ ان علاقوں میں رہنے والے افراد کا یہ کہنا ہے کہ ان علاقوں میں وبائی امراض پھوٹنے کے ساتھ ساتھ جو سیلاب کے پانی ہے اس سے جو ہے وہ امراض پھوٹ رہے ہیں، یہ افراد مشکلات کا شکار ہیں۔ ان علاقوں میں ابھی تک بجلی کی سپلائی بحال نہیں ہو سکی ہے، انتہائی مشکلات کا شکار دکھائی دے رہے ہیں یہ لوگ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے علاقوں میں جانوروں کا جو چارہ تھا وہ تباہ ہو گیا، ان کے جانور بھوکے مر رہے ہیں اور یہ خود بھی جو ہے وہ راشن کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن جھنگ انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ جھنگ، احمد پور سیال اور 18 ہزاری کے 225 دیہات ایسے ہیں جو اس وقت سیلابی پانی کی زد میں ہے۔ پانی ابھی تک وہاں پر موجود ہے۔ میرے کیمرے مین آپ کو دکھا سکیں گے کہ اس وقت بھی جھنگ کے جو نواحی علاقے ہیں جہاں پر دریائے چناب اور جہلم کا پانی آیا، وہاں پر ابھی پانی جو ہے وہ خاصی بڑی مقدار میں موجود ہے۔ یہاں پر رہنے والے افراد ابھی تک اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کا اپنے گھروں سے نکل کر شہر تک پہنچنا ابھی بھی مشکل ترین مرحلہ ہے۔ ان کا جو زمینی رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے یہاں پر جو اہل علاقہ موجود ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں جو ہے وہ کیا پریشان کیا جی سانو کوئی نہ دسیا نہیں، بہت پانی آ چکا ہے، فصلیں نقصان ہو گئی ہیں، ساڈے رستے بند ہو گئے، بجلی بند ہو گئی ہے اور بڑا خرابت ہوئی کھلوتی ہے۔ جانور بہت بھوک تو مر رہے ہیں، جانور نکلے ہی نہیں گئے۔ کئی جانور کنہ لوگاں کڈے جڑے ارہان بند دے نال، دوسرے جانور نہیں کڈے گئے، سب وچے رہ گئے۔ تے پانی اجن بھی آ رہا ہے، دسیا نہیں گیا بھائی کتنا پانی ہے کتنا نہیں ہے، سانو کوئی رپورٹ نہیں دیندے۔ یہ 7 لاکھ پانی ساڈے حساب نال ہو چکا ہے، کہنا کہ منا تے رہن والے اسی ہیں تے او سانو دسیا نہیں گیا۔ بہت خرابت ہوئی کھلوتی ہے، ساڈے رستے نہیں صحیح۔ وہ بن ویکھو تو بن خراب ہویا پیا جی، ساڈیاں سڑکاں ویکھو آن کے ساریاں خراب ہیں، نیچیاں سڑکاں وہ جا ہی نہیں سکیندا، سڑکوں نہ آ سکیندا۔ اس تو بعد بجلی ہے تو وہ کدن دی بند کر دیتی ہے۔ ساڈے جڑے بچے ہیں راتی خارش ہوندی ہے بڑی، کوت مچھر ہے گا بہت کہنا۔ تے اس واسطے جڑا ہے نا اسی تے کریندے پے ہیں، مہربانی کیتی جاوے ساتھ کہنا کوئی امداد کیتی جاوے، کوئی راشن وغیرہ نہیں کوئی کسی دیتا ہے، کسی نے پوچھا ہی نہیں، سانو کوئی دوائی نہیں پوچھی ساڈے کولوں۔ اسی تو بڑے نقصان جا رہے ہیں کہنا۔ سارے لوگ جڑے نا علاقے والے جڑے نا وہ شودے بڑے تنگ ہیں، کنا بھوکے 2-2 3-3 دیہڑے ہو گئے بھوکے پین۔ پانی 2-3 دیہڑے چلتا رہا، سانو پتہ ہی نہیں کہنا بھئی یہ عمدہ کدوں پیا، دسیا ہی نہیں کیا سانو کہنا۔ اس واسطے جی کہنا۔ یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں فصلیں کون کون سی کاشت ہیں جو خراب ہوئی ہیں؟ مکی ہے جی، دوسری سبزیاں ہیں، توریاں وغیرہ ہیں جی، اس تو بعد دوسری مرچاں ہیں، یہ بہت فصلیں ساڑیاں کھلوتی ہیں، منجیاں ہیں۔ اس واسطے ساریاں خراب ہو گئی، ختم ہو گئی کہنا۔ ہوں کوئی کھاون پیون کی چیز نہیں، جانوراں دا چارہ ہی نہیں۔ اصل تو بڑے تنگ ہیں جی کہنا۔ ہوں اسی ساڈے کو پیسہ ہی نہیں، ایسا مہینہ آ گیا پیسہ ہی نہیں کہنا، اسی بڑے مجبور ہیں ہوں۔ بیمار بھی ہو رہے ہیں، کوئی دوائی نہیں مل رہی، کوئی کیمپ نہیں لگایا گیا، کچھ بھی نہیں رہا کہنا، سانو کچھ بھی نہیں رہا۔ آپ جی کوئی ساڈے کول پیسہ ٹکا دوائیاں وہ شہروں جا کے وہ کسی طریقے نال جا لئیں تے وہ بھی کوئی نہیں کہنا، وہ مک گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ خارش ہو رہی ہے، بڑی الرجی پیدا ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، کھنگ کھانسی، یہ دیکھ سارا ساڈا بڑا نظام خراب ہوا ہوتا کہنا۔ بچے تو وچے ہر شاہ وچے کوئی سارا شہر، اس شہر دے وچ سارے کیوں آ سکتے ہیں دیہات والے؟ جی پانی ہے تو پانی دوبارہ موڑ آ گیا، دوبارہ موڑ پانی آ گیا ہے، پکی تو کراس کر رہا ہے، تو بے شک نے جا کے ویکھ لو۔
यहाँ पर जो अफराद हैं मुश्किलात का शिकार हैं, उनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया था कि पानी जो है वो तकरीबन 2 लाख क्यूसिक है, लेकिन ये मुकामी अफराद हैं, इनका ये कहना है कि पानी जो है वो 2 लाख क्यूसिक नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा है, क्योंकि ये लोग जो है दरिया किनारे आबाद हैं, इनको बखूबी अंदाजा है कि पानी जो है वो इसमें इजाफा कोई नहीं है, बड़े परेशान है, मुश्किलात का शिकार हैं। अब पता कि इन्होंने जो है वो देहात वो इनका ज्यादा नुकसान जो है वो चाम को हुआ है, उसके बाद जो जनसल तबाह हो गई। अभी तक महकमा ज़राअत जो है वो सिर्फ नुकसानात का अंदाजा है, तहम इन तमाम तर बस्तियों में देहातों में जो जेर आब आए हुए हैं, इन अफराद की मुश्किलात में जो है वो इजाफा बरकरार है। पानी की सतह कम हो रही है, लेकिन इनकी मुश्किलात में किसी भी तौर पर जो है वो कमी वाक़या नहीं हो रही है। जंग में जो 18 हज़ारी, अहमदपुर सियाल और थाना मसन कादरपुर के वो इलाके हैं जो इस वक्त दरिया चनाब और जेलम के पानी की बेरहम मौजों की जद में है। इस हवाले से जंग इंतजामिया ने कहा था कि कंट्रोल रूम कायम किया गया है, कंट्रोल रूम के जरिए सिलसिला भी जारी है। तो दूसरी जानिब ये जो मुकामी अफराद हैं, इनका ये कहना है कि पानी जो है वो किसी भी तौर पर 2 लाख क्यूसिक नहीं था, इसकी सतह में मजीद जो है वो इजाफा हुआ। इंतजामिया ने इनको आगाह नहीं किया। आप बताएं दोबारा कि कौन कौन से इलाके हैं जो पानी में डूबे हुए हैं? ये जी मौजा बेला जपाना वस्ती मलां वाली, ये ज्यादा तौर करना बहुत खराब हो गई है। मौजा मिघाना ये सारा इसलिए जाके देखो नहीं खाण नू पीण नू बड़े मजबूर है। बालन नहीं है, बालन का कोई गैस वगैरह तो है नहीं, ते वो बड़े मजबूर शोदे बैठे कहना किन्ना कोल आटा कोई नहीं, किन्ना कोल कशा कोई नहीं, वो शोदे मजबूर बैठे कहना निकले ही नहीं है। सारे पानी है, पक्की ते पानी है, सारा नीजियां पक्कियां उत्ते पानी, पक्की उत्ते बड़ा इसलिए तरीका जेड़ा पानी खा। बताएं कि बारिशें भी हो रही हैं, अगर बारिशें होती हैं बारिश हो तो क्या नुकसान होगा? बहुत बारिश होती पई है जी, ओदी जड़ियां कच्चे मकान वो गिर गए, जेड़े मतलब पक्के हैं उन्नी छत्तां सारियां चो गई, मतलब वो कानियां दी छत्तां कहते नहीं थे ज्यादा लोग करना, पक्कियां छत्तां वो भी चो गई ते बड़ा नुकसान बहुत हो रहा है। बारिश नाल ही बड़ा हो रहा है। खान पीन का मैं तेन दसा अज दूसरा दिहाड़ा अस आप भुखे बैठे हैं, इस वास्ते मतलब तुहानू इस वास्ते आना पे मेहरबानी की जाए कहना। कोई तुहाडी इमदाद वास्ते नहीं आया? कोई भी नहीं आया कहना, कोई मतलब कि सियासी आई वो भी नहीं आया, सानू किसी पूछा ही नहीं कहना। कोई सियासी वगैरह आमदे हैं वो भी नहीं आया, जो वोटां का टाइम वो भी आ जाते। एमपीएमएन कौन ने? ये साढ़े तक एमपीएमएन हूं तो है जी, इतने मौलवी बने हुए ते गुलाम बीबी भरवानी है मैंने बनी इतने जी बनी है साढ़े को वड्डी, वो पूछा उसी नहीं आन के सानू किसे पूछा ही नहीं, ना असल तो मौलवी पूछा ना सानू किसे पूछा। की मुतालबा करोगे की हुकूमत पंजाब नू कहोगे? अच्छा के कहने साढ़े नाल जी हाँ साढ़े नाल अज तावन किया जाए, कोई जरा कुछ कर सकते हैं होर के नाले जो सड़क साड़ियां सही की जावन, बिजली का आया तो बिजली बंद है, असी बड़े कहना परेशान है कहने जी। इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं, हालात बहुत मुश्किल है, यहाँ पर अवाम परेशान है और इंतजामिया से भी नाला दिखाई देते हैं, क्योंकि तकरीबन सैकड़ों में देहातों की हवाले से नंबर सामने आ रहे हैं, एक तादाद सामने आ रही है कि जो तकरीबन 225 से ज़्यादा देहात ऐसे हैं जहाँ पर ये सैलाबी पानी ने लोगों के लिए जो मुवासलाती निज़ाम है वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। अगर अजनास की बात की जाए, लोगों के पास अजनास खत्म हो गए। शुक्रिया आपका अपडेट किया मुबशिर। अब चनियोट का रुख करेंगे। चनियोट और गिरदो नवाब में काली घंघूर घटाओं ने शहर का मौसम सुहाना कर दिया। गहरे सुरमई बादलों ने अवाम के मिजाज भी ठंडे कर दिए। वक्फे वक्फे से होने वाली हल्की बारिश ने मौसम को दिल फरेब कर दिया। बाबर मुनीर से बात करेंगे। बाबर, मौसम के हवाल कहिए। बिल्कुल जी, सुबह से ही चिन्नौट और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी इसी तरह वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशन गोई कर दी गई है। इस तरह अभी भी चिन्नौट और गिरदोनवा में मूसलाधार जो है वो बारिश हुई है, जिससे मौसम जो है वो खुशगवार हो गया, गर्मी का जोर टूट गया है और जो दरख्त हैं वहाँ पर जो गर्द जमी हुई थी, दरख्त जो है वो धुल चुके हैं और एक हसीन मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ चूँकि मौसम जो है वो खुशगवार हो गया, ठंडी हवाओं के चलने का सिलसिला जारी है, जिससे दर्जा हरारत जो है उसमें नुमाया कमी वाक़ हो गया। चिन्नौट और गिरदोनवा में काली घनघोर घटाएं जो है वो छाई हुई थी, बारिश जो है वो खूब बरसे, बादल जो है वो खूब बरसे हैं, जिससे मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है और दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि दूसरी तरफ महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 24 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जब जिसमें जो है वो कमी मजीद वाक़ हो रही है। और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है सिर्फ 30 सेंटीग्रेड तक जाएगा, जिससे मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। वहीं पर चिन्नौट और गिरदोनवा में जो है वो बारिश हुई है, तो शहरी जो है वो इस
मौसम से जो दिल फरेब मौसम है उससे लुत्फ अंदोज होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद आइंदा 24 घंटों में भी बारिश की पेशन गोई जो है वो कर दी गई है। इसके बावजूद बारिश जो है वो हुई है और सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ कभी बादल जो है वो आसमान पर छाते हैं और यही वजह है कि आज चिन्नौट और गिरदनवा में जो बारिश हुई है उससे मौसम जो है वो कदर खुशगवार हो गया है। जी, चिन्नौट और गिरदनवा में बारिश की वजह से मौसम कदरे खुशगवार हो गया है। चिन्नौट और गिरदनवा में काली घंघूर घटाओं ने शहर का मौसम सुहाना कर दिया। गहरे सुरमई बादलों ने अवाम के मिजाज भी ठंडे कर दिए। वक्फे वक्फे से होने वाली हल्की बारिश ने मौसम को दिल फरेब बना दिया। दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर यह है कि बिजली का बचत मनसूबा फैसलाबाद समेत सूबा भर में 210 सरकारी अस्पतालों को सोलर पे मुंतकिल किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके सालाना 3 अरब रुपए की बचत की जाएगी। बिजली की बचत का मनसूबा है ये। फैसलाबाद समेत सूबा भर में 210 सरकारी अस्पतालों को सोलर पे मुंतकिल किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके 1 साल में 3 अरब रुपए की बचत की जाएगी। बिजली बचत मनसूबा है ये। फैसलाबाद समेत सूबा पंजाब भर में 210 सरकारी अस्पतालों को सोलर पे मुंतकिल किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे अली रामे से। महकमा तवानाई की तरफ से एक प्लान बनाया गया है कि लाहौर समेत पंजाब के जितने भी अस्पताल हैं सरकारी 210 उनकी तादाद बताई जा रही है, इनको शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। और शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो कंजम्पशन हो रही है बिजली की उसको कम किया जाए और इसमें लोड जो है वो कम हो सके। तो उसी पर जो महकमा तवानाई की तरफ से एक प्लान बनाया गया है और हुकूमत पंजाब को ये प्लान पेश भी किया गया। उसमें बताया गया है कि 95 मेगावाट की कैपेसिटी के सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे 173.3 गीगावाट की बिजली वो पैदा की जाएगी। और जब ये सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, ये शमसी तवानाई पर अस्पतालों को मुंतकिल किया जाएगा तो उससे 3 अरब रुपए की सालाना सेविंग होगी हुकूमत पंजाब की। क्योंकि पहले जो बिजली के मीटर्स लगे हुए हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से जो लगाए गए हैं तो उस पर जो बिजली की कंजम्पशन आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है और वो बिल सालाना की बुनियाद पर हुकूमत पंजाब को पे करना पड़े। और जब ये शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया जाएगा तो उसमें 3 अरब रुपए की सेविंग जो है वो इन सरकारी अस्पतालों के लिए होगी। और इसमें DHQ, THQ और ट्रशरी जो के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर यह मनसूबा बनाया गया है कि 210 सरकारी अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। और ये प्लान महकमा तवानाई की तरफ से बना के हुकूमत पंजाब को पेश किया गया जिसकी बाकायदा अप्रूवल भी हो चुकी है। जी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अहम खबर शामिल करेंगे। सरकारी स्कूलों की लैब्स के सामान में बड़े पैमाने पर घपला। खरीदे गए सामान की तफसीलात हाल फराहम नहीं की गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सामान की तफसीलात मांग ली। स्कूल एजुकेशन ने सामान की तफसीलात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। जुनेद रियास हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, इससे पहले तफसीलात जब मांगी गई तो फिर फराहम क्यों ना की गई? डिपार्टमेंट की जानब से पंजाब भर की जो 36 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज हैं, तमाम इजला की अथॉरिटीज को एक मरासला जारी किया गया था कि जितना भी सामान खरीदा गया है IT लैब्स और साइंस लैब के लिए और जो फर्नीचर का सामान खरीदा गया है गुज़िश्ता माली साल में उसकी तफसीलात फराहम की जाए। लेकिन अभी तक जो है वो तफसीलात जो है वो फराहम नहीं की जा सकी। हालांकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से मुताबिक बार जो है नोटिफिकेशन जारी किए गए और इस नोटिफिकेशन में यह भी जाहिर किया गया है कि इस सामान की खरीदारी में जो है घपलों का इंकशाफ हुआ है जिसकी वजह से अथॉरिटीज जो है वो भेज नहीं रही। इस हवाले से अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया है अथॉरिटीज को और उनको कहा है कि 2 हफ्तों के अंदर जो है ये रिकॉर्ड मुहैया की जाए। बसूरत दीगर जो है मुतलका अथॉरिटीज के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और जो अथॉरिटीज नहीं भिजवाएंगी उनके खिलाफ जो है वो पीडा एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस खबर से मुतालिक आपने अपडेट किया जुनेद रियाज, शुक्रिया आपका। हमारे साथ रहिएगा। बात करेंगे स्कूलों में तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील के मामले की। तमाम अथॉरिटीज से माली साल के लिए डेवलपमेंट स्कीम्स की तफसीलात तलब कर ली गई। अथॉरिटीज बिला ताखीर डेवलपमेंट बजट की तफसील दें। स्कूल एजुकेशन की मनसूबों की तफसीलात फाइनेंस डिपार्टमेंट को फराहम करने की हिदायत की गई। जुनेद रियाज से ही बात करेंगे। जुनेद, यकीनन ये अच्छी खबर है। जी, ये जो तरक्याती स्कीमें हैं साल 2020 और 21 की इसकी तफसीलात मांगी गई हैं ताकि जो तरक्याती काम है स्कूलों में जो कि अरसा दराज से जारी हैं और वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके तो उस हवाले से तफसीलात मांगी गई हैं ताकि स्कूलों में जारी तरक्याती कामों को जो है वो बरवक्त जो है पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। और इस हवाले से तफसीलात मांगी गई हैं ताकि फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो है आइंदा साल में भी जो तरक्याती काम होने हैं उस हवाले से तफसीलात फराहम करके
ان سے بجٹ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے. اور اس حوالے سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اتھارٹیز کو کہا ہے کہ جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں اور جو جاری ترقیاتی کام ہیں ان کی جو تفصیلات فراہم کی جائیں تاکہ اسکولوں میں جاری ترقیاتی کاموں کو جو ہے وہ نہ صرف بروقت تکمیل کی جا سکے بلکہ اس حوالے سے فنانس ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ بجٹ بھی حاصل کیا جا سکے. جی ٹھیک ہے جنید ریاض، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ. آگے بڑھیں گے. خبر یہ ہے کہ چنیوٹ میں ضلع انتظامیہ ڈرائیور سے انٹری کے نام پر مبینہ بھتہ وصول کرنے لگی. رکشہ یونین چنیوٹ نے پرچی مافیا کے خلاف احتجاج کی کال دے دی. اسی پر بات کریں گے عبدالقدیر سے. ہاں جی بالکل، چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی انوکھی منطق سامنے آئی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ جو رکشہ ڈرائیور ہے وہ جو ہے وہ پرچی مافیا کے خلاف پھٹ پڑے ہیں. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پرچی مافیا جو ہے وہ سرگرم ہو چکی ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ چنیوٹ کی تمام بڑی شراہوں پر بیجا ٹیکسز کی بھرمار ہے. ایک طرف جہاں شہری مہنگائی سے پریشان ہے تو وہیں جو رکشہ ڈرائیور ہے ان سے جو ہے وہ 20 سے 30 روپے جو ہے وہ مہینہ طور پر پرچی کے طور پر وصول کیے جا رہے ہیں. اس وجہ سے رکشہ ڈرائیور ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ شدید پریشان ہے. بھائی بتائیے گا کیا وجہ ہے کیوں آپ سے جو پرچی کی مد میں پیسے لیے جائیں؟ جی السلام علیکم سر یہ ہمارے اوپر نا پہلے مہنگائی کا بوجھ کم ہے تو الٹا جو ہے نا گورنمنٹ نے ہمیں نا ٹیکسوں کے اندر نا نچوڑ کے رکھ دیا ہے. سر یہ جو انٹری فیس ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میں آن ایئر بات کر رہا ہوں، یہ دیکھیں آپ سر یہ انٹری فیس ہے. یہ انٹری فیس کس چیز کی لے رہے ہیں؟ پوری دنیا میں کسی جگہ کسی بھی کونے پہ جگہ ٹیکس یہ جو لے رہے ہیں نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی. یہ تو ان لوگوں نے بدماشی بنائی ہوئی. آج صبح ان لوگوں نے مار کے ایک رکشے والے کو اس کا برا حال کر دیا، لوگ لوان کر دیا اس بیچارے کو. اس کا رکشہ لے کر ادھر جگہ ٹیکس والے اڈے پہ لے گئے. یار یہ حد ہو گئی ہے کہ ہم مزدور لوگ ہیں، ان کو پال کے ان کے لیے ہم کماتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہر ایک چیز کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ سر یہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو جگہ ٹیکس ہے نا یہ ختم کیا جائے، ٹھیک ہے نا. اگر جگہ ٹیکس نہیں ختم کریں گے تو انشاءاللہ کل اپنا ہم نا منڈے کو انشاءاللہ میں اپنے رکشے کو نا وہ سامنے کھڑا ہے میرا وہ رکشہ، میں اپنے رکشے کو ڈی سی او آفس کے سامنے آگ لگاؤں گا. اور جو اگر کسی کے ہوا کو کسی کا مسئلہ تو میں حاضر ہوں گا. سارے ہم رکشے والے جتنے بھی ہیں نا ہم انشاءاللہ کال دے رہے ہیں. منڈے کو انشاءاللہ ہماری ہڑتال ہے، جو مرضی کو کر لے. ہم نے ڈی سی او آفس کے سامنے دھرنا دینا ہے اور اس ناجائز جو ہے نا ناجائز جگہ ٹیکس کے خلاف ہم نے کوئی اور اٹھائے آواز نہ اٹھائے، میں اٹھاؤں گا اور انشاءاللہ ڈٹا ہوں. اس رکشہ ڈرائیور کی آپ نے آہو بکا سنی، یہ پرچی ہے اور انٹری کے نام پر جو ہے وہ اس سے 20 سے 30 روپے جو ہے وہ وصول کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ رکشہ ڈرائیور شدید پریشان ہے. رکشہ ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہے وہ دھرنے کی کال بھی دے دی گئی ہے. اس وجہ سے جو رکشہ ڈرائیور ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ متعدد بار ضلعی انتظامیہ کو، ڈپٹی کمشنر کو، میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کو درخواستیں دی لیکن تاحال جو ہے وہ انٹری کے نام پر جو مبینہ طور پر بھتہ وصول کیا جا رہا ہے اس کو معاف نہیں کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے رکشہ ایسوسی ایشن کے تمام تر جو عہدیداران ہیں، جو رکشہ ڈرائیور ہیں، انہوں نے جو ہے وہ دھرنے کی کال دی ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر یہ جو بھتہ ہے یہ نہ معاف کیا گیا، یہ نہ ہم سے وصول کیا گیا تو ہم جو ہے وہ دھرنا دیں گے اور شدید جو ہے وہ احتجاج کریں گے. عبدالقدیر آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا. جہاز ایڈوکیٹ کے اغوا اور قتل کے بعد یورپین ایسوسی ایشن فار لارڈز کا پاکستان بھر میں وکلاء کے قتل، اغوا اور ان پر حملوں پر اظہار تشویش کیا گیا. حکومت پاکستان سے وکلاء پر ہونے والے حملوں کی تفصیلات بھجوانے کی استدعا کر دی گئی. پنجاب میں وکلاء پر 22 حملے ہوئے جن میں 9 وکلاء جاں بحق اور جبکہ 10 زخمی. جبکہ 3 حملوں میں محفوظ رہے. طیب مقبول اپڈیٹ کریں گے. تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقہ سے ایڈوکیٹ میاں اعجاز کے اغوا اور قتل پر یورپین ایسوسی ایشن فار لائز کی جانب سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو خط لکھ دیا گیا. یورپین ایسوسی ایشن فار لائز کی جانب سے حکومت پاکستان کو لکھے جانے والے خط میں ان کا کہنا تھا کہ وکلاء پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں جس میں نہ صرف وکلاء اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں بلکہ ان کو شدید زخمی کیا جا رہا ہے جس سے وکلاء کو پیشہ ورانہ امور سر انجام دینے میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے. اس خط کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے تمام صوبوں کے آئی جیز سے رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ کتنے رواں سال کتنے وکلاء پر حملے ہوئے، کتنے وکلاء اپنی جان کی بازی ہار گئے اور زخمی ہوئے. اس حوالے سے آئی جی پنجاب کی جانب سے حکومت پاکستان کو رپورٹ کی گئی کہ رواں سال صبح پنجاب میں
वकला पर 22 हमले हुए, जिनमें 9 वकला अपनी जान की बाजी हार गए, जबकि 10 वकला शदीद जख्मी हुए। 3 वकला इन हमलों में महफूज रहे। फैसलाबाद के हवाले से CPO फैसलाबाद की जानब से रिपोर्ट भिजवाई गई कि 3 वकला पर हमले हुए, जिनमें मियाँ इजाज़ कत्ल हो गए, जबकि 2 वकला महफूज रहे। IG पंजाब को तमाम फैसलाबाद समेत तमाम अजला के CPO की जानब से रिपोर्ट भिजवा दी गई है, जिस रिपोर्ट को IG पंजाब की जानब से हुकूमत पाकिस्तान को अरसाल कर दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान तमाम सूबों से रिपोर्ट हासिल करके यूरोपियन एसोसिएशन फॉर लॉयर्स को इसका जवाब अरसाल करेगी। जी तैयब, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मकई की फसलों पर लश्करी सुंडी की किस्म फॉल आर्मी वर्म का हमला ज़राई माहिरीन के लिए नया चैलेंज बन गया। ज़राई यूनिवर्सिटी में माहिरीन ने सर जोड़ लिए। फॉल आर्मी वर्म के फसलों पर हल और सद्देबाब के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने मीटिंग की सदारत की। जहांगीर अशरफ से बात करेंगे। जी जहांगीर, इस मीटिंग के हवाल बताइए। जी, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और अगर ज़राअत के हवाले से कोई भी मसला दरपेश हो तो ज़राई यूनिवर्सिटी पर सबकी नज़रें टिक जाती हैं। इस हवाले से जैसे ही अब कोई भी नया हमला होता है किसी फसल पर तो उस हवाले से भी जो किसान हैं वो यही देखते हैं कि ज़राई माहिरीन उनको क्या मशवरे देंगे और ज़राई माहिरीन इसका क्या हल निकालेंगे। चाहे वो लोगस्ट की बात हो या अब लश्करी सुंडी के हवाले से मुख्तलिफ शिकायत सामने आ रही हैं कि मकई की फसल पर लश्करी सुंडी की एक नई किस्म की तरफ से हमला किया जा रहा है जो कि काफ़ी नुकसान पहुँचा रही है। तो इसी हवाले से आज ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तमाम ज़राई माहिरीन और जो किसान की बड़ी तादाद है और मुख्तलिफ इंडस्ट्री से लोग यहाँ पर मिल बैठे हैं ताकि इसका कोई हल निकाला जाए इसके सद्देबाब के हवाले से और फसलों को होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए कोई इसकी फाइंडिंग्स की जाए, इस पर कोई रिसर्च की जाए। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी से बात करते हैं। सर बताइएगा कि जो लश्करी सुंडी की एक नई किस्म आ रही है और ये मकई की फसल पर ज़्यादा अभी इसकी शिकायत सामने आ रही तो उसके हल के लिए क्या समझते हैं, मुमकिन तौर पर क्या क्या सद्देबाब हो सकता है और आज मीटिंग के हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, ये कोई 1.5-2 साल से ये रप्ट हुआ है और ये पेस्ट जो है अमेरिका से, फिर उसके बाद अफ्रीका से, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इन ममालिक से होता हुआ हमारे यहाँ जो है पहुँचा है। और मकई जो है इसकी फेवरेट है, लेकिन बाकी क्रॉप्स पे भी ये हिट कर सकता है। कॉटन, राइस और वीट वगैरह जो है इसको भी डैमेज कर सकता है। और ये मैं समझता हूँ कि जैसे लोकस है इसी तरह का दूसरा ये सब्स्टिट्यूट है, अल्टरनेट है कि ये भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है क्रॉप्स को। और अब ये काफ़ी एरिया में फैल गया है, यानी सिर्फ ओकाड़ा में नहीं, पहले ओकाड़ा में अपीयर हुआ, फिर अब गुजरात में मियाँ चन्नू और बाकी टोबा ये वाले सारे एरिया जो इसने कवर किए हैं, क्योंकि ये फ्लाई करता है और काफ़ी 100 किलोमीटर जो है वो फ्लाई कर सकता है एक दिन में। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी इसने फ्लाई किया है वहाँ इन्वेड किया है। और क्योंकि जो हमारी मेज़ क्रॉप है ये बड़ी लश ग्रीन होती है, इसका पत्ता जो है वो उसमें अच्छी फूड होती है, न्यूट्रिएंट होते हैं, तो ये एंजॉय करता है उसकी फूड को और इसलिए साथ साथ उसको डैमेज। जहांगीर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। फैसलाबाद में पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन के जोनल चेयरमैन बराए साल 2020-21 का नाम मंजरियाम पर आ गया। गच्छा ग्रुप से शाहिद अकरम मंडी के जोनल चेयरमैन मुंतखब हुए। इसी पर मजीद बात करेंगे शराज भट्ट से। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शूरा मुहर्रमी अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए रियासती इदारों की खिदमात और बैनुल मसालिक हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल सामने आने पर मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमाए कराम की मीडिया से गुफ्तगू। बड़ा होगा कि हमारे एक साथी जेलम के बहुत बड़े अदारे हाफिज अब्दुल हमीद, उनको भी उठाया गया CTD वालों ने, और जिस तरह के एक कोई चोर उचक्का होता है या किसी ने कोई कब्जा ग्रुप होता है, इस तरह उसको उठाया गया सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने कुछ बातें जो हैं वो ऐसी जो है वो कही हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं। फैसलाबाद में शूरा मुहर्रमी अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए रियासती इदारों की खिदमात और बैनुल मसालिक हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल सामने आने पर
मजलिस से वहादत उल मुस्लिमीन की जो उलमा इकराम हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अभी आपको ये बताएंगे फैसलाबाद में पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन के जोनल चेयरमैन के इंतखाब का मामला, गच्छा ग्रुप से शाहिद अकरम सूतर मंडी के जोनल चेयरमैन मुंतखब। मजीद बात करेंगे शराज भट्ट से। फैसलाबाद पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो जोनल चेयरमैन बराए साल 2020-21 का नाम रिवॉल्व हो रहा था वो आज मंजर आम पर आ चुका है और शाहिद अकरम गुच्छा जो कि गुच्छा ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन से, वो साल 2020-21 के लिए जोनल चेयरमैन की सीट पर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। वो अपनी खिदमात जो हैं एज ए जोनल चेयरमैन फैसलाबाद में सूतर मंडी को रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको कि गुच्छा ग्रुप जो है उसने क्लीन स्वीप किया था और गुच्छा ग्रुप से तमाम एग्जीक्यूटिव्स की सीट जो है वो गुच्छा ग्रुप के पास गई थी और आज जो है एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई है जिसमें एक नाम सामने आना था और उसी नाम ने चेयरमैन के तौर पर साल 2020-21 को सर्व करना था और आज वो नाम मंजर आम पर आ चुका है। शाहिद अकरम गुच्छा जो कि गुज़िश्ता 2 साल कबल सीनियर वाइस चेयरमैन भी रहे हैं सूतर मंडी के, वो साल 2020-21 के रोज जो टेनोर है उसमें बतौर चेयरमैन अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। शाहिद अकरम गुच्छा का कहना है कि वो पूरे इस 1 साल के अंदर जो कोविड की वजह से गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर सूतर मंडी ने नाकाबिले तलाफी नुकसान बर्दाश्त किया है उसको मुकम्मल करने के लिए उसको पूरा करने के लिए इंतज़ामिया से और हुकूमत वक्त से जो है वो तमाम मुतालबात जो है वो पूरे करवाएंगे, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर औकात कार बढ़ाना, सूतर के प्राइसेस कम करना और इसके साथ साथ जनरल सेल्स टैक्स जो है उसके खात्मे के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें और काविशें बरोए कार लाएंगे। ठीक है शराज, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड मुकम्मल कर लिया गया। पहली मीटिंग में बोर्ड को कंपनी के काम की ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा मंसूबे मुकम्मल करना आसान होगा। अब्दुर्रहमान अपडेट करेंगे। आज बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड तश्कील दे दिया गया और इस हवाले से यहाँ पर जितने भी इश्यूज़ अगर काम के हवाले से आ रहे थे तो अब नहीं आएंगे और उसमें जो नई प्लानिंग है वो भी मंजूर करवाई जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर एमडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मान साहब बताइएगा, यहाँ पर बोर्ड मुकम्मल हो गया, अब उसका इजलास होगा तो क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर जो मंजूर करवाई जाएंगी, क्या एजेंडा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये अपना FWMC का एक नया बोर्ड जो गवर्नमेंट ने तश्कील दिया उसका हम पहली मीटिंग करने जा रहे हैं सैटरडे वाले दिन। उसमें मेन एजेंडा तो उसमें मीट ग्रीट ही होता है कि क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग हुई तो सारे जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे उनको हम एक ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद अगर कोई टेबल एजेंडा के अंदर कोई चीज़ जिस तरह के रिकवरी के इश्यूज़ हैं या इस तरह के वो डिस्कस किए जाएंगे। अच्छा बिल्कुल, उसमें पहली मीटिंग में तारफ़ किया जाएगा, इसमें कंपनी की जो काम की ब्रीफिंग दी जाएगी और इसके अलावा अगर कोई टेबल है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड मुकम्मल कर लिया गया। पहली मीटिंग में बोर्ड को कंपनी के काम की ब्रीफिंग दी जाएगी और मज़ीद आपको बताएं कि इससे आइंदा के जितने भी मंसूबे होंगे उनको मुकम्मल करना आसान होगा। कमालिया में सूबाई वजीर अशफा रियाज फतेहाना ने बल्दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। अशफा रियाज फतेहाना ने ऑनलाइन एप्लीकेशन को खुद डाउन किया और रजिस्टर्ड हुई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हांजा भी उनके हमरा थे। इसी पर बात करेंगे रिजवान खान से। बिल्कुल, कमालिया में सूबाई वज़ीर आशफा रियाज फतेहाना की जानब से बल्दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन को मुतारफ़ करवा दिया गया। सूबाई वज़ीर आशफा रियाज फतेहाना ने बल्दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और ख़ुद उसमें रजिस्टर्ड हुई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा भी उनके हमरा थे। सूबाई वज़ीर आशफा रियाज फतेहाना का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामुन्नास की फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है और तमाम तर सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुँचाने के लिए जो है कोशिशें। सूबाई वज़ीर आशफा रियाज फतेहाना का कहना था कि
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से तमाम अदारों में करप्शन के खात्मा के लिए जो है रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा रहा है। तमाम सहूलियात जो हैं वो किसी भी सिफारिश के बगैर जो है अवाम को पहुँचाने के लिए जो है इकदाम किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा का कहना था कि कमालियों को ये एजाज़ हासिल है कि कमालिया में सबसे पहले बल्दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो रजिस्टर्ड हुए हैं उनको जो सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जो कि सूबाई वज़ीर आशमा रियाज फतेहाना ने खुद अपने हाथों से जारी किए हैं। उस असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा का कहना था कि खुद डैशबोर्ड को मॉनिटर कर रहा हूँ, किसी भी किस्म की जो गफलत और कोताही नहीं बरती जाएगी। तमाम तर जो लोग हैं वो भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बल्दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन को इस्तेमाल में लाएँ और तमाम नकूल के असूल के लिए और दूसरी जो शिकायत हैं उनके लिए जो बल्दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन का इंतखाब करें। जी आपका इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।